Hello guys, welcome to this English learning channel. The first thing I like to say is कि हर वीडियो में दो पोर्शंस होंगे. फर्स्ट हाफ में हम इंग्लिश में बात करेंगे और सेकंड हाफ में हम हिंदी में बात करेंगे. तो जो बिगिनर्स हैं, जो बिगिनर लेवल पर हैं, वे भी वीडियो को स्टार्टिंग से ही देखें ताकि वे इंग्लिश सुने और समझने की कोशिश करें और फिर उसी वीडियो के सेकंड हाफ में सेम जो एक्सप्लेनेशन है वो हम हिंदी में करेंगे. ये आपको इंग्लिश लर्निंग में बहुत ज़्यादा सहायक होगा. ठीक है? Alright guys, let's begin with the first thing here. I'd like to say that there are plenty of resources available on the internet and probably countless YouTube channels for improving your English. However, the first thing I want you to do is reflect on the question, why do I need to study grammar? You know, what is the role of grammar? Does it really help us improve our fluency? Does it really help us gain more knowledge about speaking? Do we get more fluent by studying grammar? For example, I'll give you an example about a person whom I came across on this website called speaking24.com. I will tell you more about this website. You know, it's a website where you can find English speaking partners. Yeah? Because many of us don't have anybody at home or in our friend circle whom we can talk to in English, and practice is what we need to improve our skills, right? So this guy, he told me that he did not prefer studying grammar at all, and instead he improved his spoken English skills just by speaking to the native English speakers like the Americans and the English people. However, the first thing I noticed while talking to him was that he had a very nice accent. He had a lot of confidence when he used to speak, but he made a lot of grammatical errors. So as you know, when you construct a building, you make sure that the foundation of the building is very strong. It has to be very strong. Only then it can bear the weight of the entire building. So before you even think about improving your fluency, improving your accent, or correcting your pronunciation, I think the first thing you guys should do is learn grammar. And I think many of you know grammatical rules already, so maybe this can be a revision for you guys. And I'll come up with more videos explaining stuff which is at intermediate or advanced level, and I sort of specialize in giving voice and accent training. So I will upload videos regarding those topics as well. So if we apply this idea to us, the biggest problem is, which idea am I speaking about? Am I referring to? Like, if you think that I don't need to study grammar, I can learn English, I can get more fluent, I can improve my pronunciation just by speaking to people, just by practicing. So the biggest problem we will be encountering is, how do I know that the person I am speaking to always speaks English which is free of any grammatical errors? Yeah? For example, if I speak to my friend and he makes grammatical errors, so I will end up the English that he speaks, and I won't come to know that I'm making grammatical errors. Yeah? So even if you think that I can construct sentences, I can speak in English with others, and I don't think that grammar has any role to play during the learning process, I think you might want to reconsider your thought or your decision, right? So as you know, grammar is the first thing we need to study. Let's discuss some examples. I'm trying to prove this point here, that grammar is indeed the first thing we should be learning, or we should be following the grammatical rules. We should be conscious of the grammatical rules while we speak. So the second,
I'd like to give is about a teenager who is learning how to drive a car. And what this guy does, let's say this is a girl, so what she does is she observes her father driving the car daily. So she knows which pedal to press to stop the car, yeah. Now the pedal in the left, yeah, and which pedal to press to accelerate the car, which is the right pedal, but she doesn't know the names of these pedals. And one day, when she asks her father, "How do I drive the car?" So he tells her that press the left foot with your press the left pedal with your left foot, and then move the gear stick with your left hand, put it in the first gear, and then press the right pedal gently with your right foot. So she drives the car. Yeah, she learns how to drive the car. She learns it unconsciously, but she's not aware of the technical terms like this pedal is called the brake pedal, this is the clutch pedal, and then this is the accelerator or the race pedal, right? However, when she joins a driving school because she needs to obtain a driving license, so the first thing the driving instructor tells her that, hey, this is the brake pedal, this is the clutch pedal, and this is the the race pedal, the accelerator. So and then she gets a bit confused. I mean, she's a bit shocked that okay, all this time I've been driving my car. I know how to drive a car. Why is he telling me these technical terms? Do I even need to learn the names of these pedals? So the answer is yes. If you want to improve your spoken English skills, if you want to improve your level of spoken English, right, you really need to learn the terms which we'll be studying in the upcoming videos, because this is just an introductory video where I'm trying to emphasize the role of grammar. Because I've come across many people who tell me that, hey, I don't think learning grammar is going to be useful for me. I don't think it's going to improve my fluency. So that's why I'm trying to lay more emphasis on it. Yeah. So the third example here is a person who has a very sweet voice, who's able to modulate his voice well, and he sings well, and now he joins music classes for the very first time. So when his instructor or his classical teacher, he tells him, okay, this is sa, this is re, this is ga, yeah, and then sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. And then he tells him about the notes, the chords and different ragas. So this guy is again shocked. He's like, why do I need to study this theoretical stuff? Why can't I start practicing directly? So the answer is, he may be a good singer, but if he wants to improve his level, he really needs to study the basics, which involves the theory, and then he'll be practicing that. He'll be applying that while practicing, while singing and playing harmonium simultaneously, right? So guys, if you look at the structure of English grammar, there are a lot of things, there are a lot of ways of studying those things. I have drawn this concept map of English grammar. This includes a few of those things, but this is not all of it, yeah? You can find this material, you can find resources from a grammar book or any online good dictionary like Cambridge. So, but these things are important to learn, and I will be covering these one by one. It's just that I just thought of creating a YouTube channel yesterday, and this is my first video. Yeah. Alright, guys. The last thing I want to say is that when you learn anything in grammar, for example, if you learn about any tense today and you want somebody to speak to in order to practice, yeah? So if you don't have anybody in your family or your friend circle, you can obviously find somebody on the internet who would be happy to talk to you.
and I can share some examples, which I have. I can share some examples of websites which I have been using for the past 8 years, and I have found these many, very much useful. The very first one is www.speaking24.com. A very easy and helpful website. All you have to do is put in your name, your age, your gender, your level, whether you're at the beginner level or intermediate or advanced, yeah? And then you need to write in your Skype ID, your Skype username, and that is how people who want to talk, who are searching for English speaking partners, they can call you in Skype, and it's always advised to click on the Skype button here, corresponding to each person here, and then message them first. And hey, I found you on this website. Can we talk? Or would you like to practice English with me? And then you guys can call each other and then, resume your conversation. And trust me, initially it may sound a bit boring, but afterwards, once you found the right person. Now, what do I mean by right person? So, what it means is if you find somebody who is at a lower level than you, then it may not be beneficial for you. So you need to find at least somebody who is at your level or a bit at a higher level, so that you can learn something from that person. At least that person should not be making any grammatical errors. And if you are lucky, then you will find somebody from the US. And of course, it's always I mean, those guys are very entertaining, very helpful. Some of them might make some racist remarks, but you can always ignore that because we are here to learn English. And I have a lot of friends from the US and UK in my Skype list. So that is the first website I wanted to let you guys know. And the good thing about this is, whenever you get time, be it in the morning, in the afternoon, in the evening, or at night, you will always find some people waiting, rather a lot of people who are willing to talk to people in English. So this is the right place to look for an English speaking partner. And you must not disclose your real name. You must not disclose your date of birth and other things which are considered confidential. And you would not want to share your real location. For example, if you find somebody from Delhi or at the same place where you are from, don't tell them the exact location. Yeah? Remember, you're talking to somebody on the internet who's a stranger, so you would not want to disclose your details, your personal details, including your date of birth and your real name, stuff like that. And guys, this is the second website. I got to know about this only a year ago. www.freefortalk.com. In fact, this is a very good platform to learn different languages, and I am obviously interested in English. So you are, of course, interested in learning English. So you can press on the button that says English. And at the time I visited this website, there were about 133 groups available, but some of them may be full. For example, the one at the bottom left-hand corner here, it shows 3 slots that in this group, only 3 persons can participate at the moment or at a time. And one of them is the person who has created this group, or whom we call the admin. So this is the flexibility that this website gives you. If you feel more comfortable in a one-to-one conversation, you can create a 2 members group. Otherwise, there are plenty of groups which can accommodate, let's say, 9 or 10 persons, or maybe unlimited, I'm not sure. And if I come across more such websites where you can find English speaking partners, I'll definitely share the links in the comment section. So guys, this is it for today's video, and now I'll be speaking in Hindi for those guys who are beginners. Yeah.
So it's really important for them to understand what I just said. So for those who don't need to watch the video in Hindi, you can please subscribe to the channel if you liked it. I'll be uploading videos with topics about grammar and how to improve your pronunciation. And I would really appreciate if you would subscribe to the channel. Thank you. तो गाइज अब हम हिंदी में बात करेंगे। हर वीडियो में ऐसा हम करेंगे, पहले हम इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप फिर भी शुरू से देखें, और जब हम सेकेंडली हिंदी में बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, है ना। और अगर आपको जरूरत होती है तो आप हिंदी में सुन के दोबारा वीडियो को स्टार्टिंग से देखें। जो बातें हम आपने इंग्लिश में सुनी हैं और जो आप हिंदी में सुन रहे हैं उसको दोबारा इंग्लिश में सुने, और ज्यादा से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी बातें की हैं। हमने ये डिस्कस किया है कि इंग्लिश ग्रामर को सीखना या समझना क्यों जरूरी है। काफी लोग कहते हैं कि बोलते वक्त हम सोचते हैं कि आगे क्या बोलना है, सेंटेंस जो है पूरा फिनिश नहीं हो पाता है, ठीक है। और कई लोग ऐसा मानते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक मुझे पर्सन मिला एक वेबसाइट पे speaking24.com। ये ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो स्काइप पे या MSN मैसेंजर पे और जो भी मैसेंजर्स हैं उन पर बात करना चाहते हैं हम जैसे लोगों से, क्योंकि वो उनका भी यही एम है कि वो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ सीखने वाले हैं, कुछ सिखाने वाले भी होते हैं वहां पर, और कुछ यूएस के भी लोग होते हैं जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, जिनको हम गोरे बोलते हैं या अंग्रेज। तो उनसे अगर आपका कभी मतलब कनेक्ट होता है तो ऑब्वियसली आपको बहुत फायदा होगा उनकी इंग्लिश सुन के। तो ऐसा मुझे एक बंदा मिला इस वेबसाइट पे, तो उससे मैंने पूछा कि आप कैसे सीखे हैं इंग्लिश। तो वो बताता है मुझे कि मैंने बस अमेरिकन से बात की है इतने सालों, और मैं ऐसे ही सीख गया हूँ, मैंने कभी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी है। तो मैंने ये देखा कि वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते थे, एकदम जैसे अंग्रेज बोलते हैं ऐसा उनका एक्सेंट था, बहुत क्लैरिटी थी एक्सप्रेशन में, फ्लुएंट भी काफी थे। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कई बार कर देते थे। जैसे जब हम डेड का यूज करते हैं तो डेड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वो हमेशा सेकेंड फॉर्म लगाते थे। जब उनको बताता था थोड़े से वो हैरान होते थे कि ऐसा क्यों है कि मुझे इस बात का पता नहीं है। और उन्होंने वेरीफाई भी किया इंटरनेट पे, चेक किया कि डेड के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या सेकंड फॉर्म लगाते हैं। चलो टेक्निकल टर्म्स अगर नहीं भी पता हो, लेकिन जिस बंदे का एक्सेंट बहुत अच्छा है, या इसका मतलब ये है कि वो एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो उस लेवल पर पहुंच के ग्रामेटिकल चीजें पढ़ना या रूल्स पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आप पहले ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद जो भी वोकैबुलरी है या एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन, जिस भी फील्ड में आगे आप एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और इसी का हम एक सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा है या बच्ची है जो रोज अपने फादर को कार ड्राइव करते हुए देखती है ना। वो देखती है कि कौन से पैर से ये पैडल दबाना है जिससे ब्रेक, जिससे कार रुकती है, और किस पैडल से कार स्पीड में आती है। तो वो सब ऑब्जर्व करती है और उसको कार चलाना आ जाता है। लेकिन जब उनको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है तो वो ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करती है, और जो इनका इंस्ट्रक्टर है वो उनको पहली चीज ये बताता है कि जो लेफ्ट क्लच, जो लेफ्ट पेडल है वो क्लच है, ठीक है, बीच वाला ब्रेक है, और जो राइट साइड में जो पेडल है वो रेस या एक्सेलरेटर है। फिर वो गियर बॉक्स के बारे में बताता है, और भी मतलब काफी टेक्निकल टर्म्स उनको बताते हैं। तो वो पहले तो ये सोचती है कि अगर मुझे गाड़ी चलाना आता है तो मुझे क्या जरूरत है ये सीखने की। मतलब ये ऐसा बहुत रेयर केस हम डिस्कस कर रहे हैं, सबको पता होता है वैसे कि कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा एक्सेलरेटर है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ देख देख के ही गाड़ी चलाना सीखा है, उनको टर्म्स के बारे में नहीं पता है। तो ऑब्वियसली थोड़ी दिक्कत स्टार्टिंग में आती है। तो यही दिक्कत उन लोगों को आने वाली है, थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है, थोड़ा सा हमको सीखना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट भी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप अगर ग्रामर की टर्म्स वगैरह सीखते हैं
स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा या थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, फ्लुएंसी भी धीरे धीरे आएगी। तो लर्निंग जो है स्लो प्रोसेस है, जितना भी कोई काम आप जितने धीरे से सीखते हैं, स्लो सीखते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से आपको लंबे समय तक आप याद रख पाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने बोला था पहले भी, वो यही था कि अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा और सुरीला गाता है ना, बहुत उनकी मधुर आवाज है, बहुत अच्छे वो गाने गा लेते हैं, लेकिन जब उनको और आगे मान लीजिए प्रोफेशनली उनको सीखना है म्यूजिक या और आगे सीखना चाहते हैं, तो जब वो म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जो जो उनके उस्ताद जी हैं वो पहली चीज ये बताते हैं कि ये देखो ये सा है, इस की से इस फिंगर से आप सा की आवाज निकालो, है ना, फिर ये रे है, गा म पा धा नी सा। उसके बाद उनके कॉम्बिनेशंस बताते हैं, फिर राग्स के बारे में बताते हैं कि ये राग ऐसा है, इसमें ये वाली कीज लगेगी, ये नहीं लगेगी। तो उनको बहुत थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है स्टार्टिंग में कि मुझे ये सब थियोरेटिकल चीजें क्यों बताई जा रही हैं, जब मैं सीधा मतलब वो ट्राई करते हैं कि उस्ताद जी आप गाना गाओ, आप अलाप लो और मैं सीधा आपको कॉपी कर लूंगा, इस लेवल पे वो ऑलरेडी पहुंचे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको बेसिक से ही स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो ये भी सिमिलर एग्जाम्पल है कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी है, अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो थोड़े से बेसिक टर्म्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए ग्रामर को अगर थोड़ा पढ़ लेंगे आप, तो आप ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और लिख पाएंगे, क्योंकि जब रियल लाइफ में आप इंग्लिश बोलते हैं तो उस समय कोई चेक करने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता आपको कि यहाँ पे आपने ये एरर किया है, यहाँ पे आपने ये वर्ड गलत लगाई है ना। तो आप बस अपने आप से ही जो आपको समझ में आता है आप बोलते हैं। तो अगर ग्रामर आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो आपका जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो इतना स्ट्रांग होगा कि आगे जो भी आप चीजें सीखना चाहते हैं इंग्लिश में, फ्लुएंसी है या एक्शन इंप्रूव करना है, प्रोनाउंसिएशन है, तो वहां पर आपका फोकस रहेगा। ग्रामर आपको ऑटोमेटिकली जब आ चुकी होगी, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैंने शायद कुछ गलत बोला, क्या मैंने वर्ब ठीक लगाई, क्या मैंने सेंटेंस ठीक से कंस्ट्रक्ट किया। तो ये दो एग्जाम्पल्स के रूप में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रामर की जरूरत होती है। जो काम मेरे फ्रेंड ने किया, जिनकी मैं बात कर रहा था, जो मुझे इंटरनेट पे मिले, वो अमेरिकन से बात करते थे रोज, और उनको उनसे बात करते करते वो उनसे बात करते करते वो उनका एक्शन भी सीख गए, उन्हीं की तरह बातें करने लगे, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करने लगे। जैसे डेड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है मेन वर्ब की, और वो सेकंड फॉर्म लगाते थे। जैसे वो कहते थे, मिस्टर मयंक, आई डिड टॉक टू यू, लाइक आई डिड टॉक्ड, TALKED, और आई डिड नॉट टॉक्ड टू यू यस्टरडे। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि इतना बढ़िया बोलते हैं, फिर भी डिड के साथ जो है सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ये है ग्रामर की इंपॉर्टेंस। और अब मैंने ये जो स्क्रीन पे दिखाया है, ये एक कॉन्सेप्ट मैप है, यानी आप इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर अगर मोटा मोटा देखें तो ये चीजें हैं जो हमको पढ़ने की जरूरत है, और साथ में इनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप में से काफी लोग इन चीजों से अवेयर होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी वीडियोस में बिगिनर लेवल का कंटेंट नहीं होगा, थोड़ा इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल भी होगा, पर आपकी इससे रिवीजन भी हो सकती है अगर आपको जो ऑलरेडी आता है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी कंसेप्ट आप सीखते हैं, जैसे कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, वो भी फॉर्मूला सीखता है, जब तक उसके ऊपर बेस्ड सम्स या प्रॉब्लम्स नहीं करेगा, उसको ठीक से समझ में आएगा नहीं, या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मुझे ऐसे सम सॉल्व करने आते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो यही होती है कि उनकी फैमिली में कोई नहीं होता है ना, कोई इंग्लिश में बात करने वाला, या अगर इंग्लिश बोलते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, इतना अच्छे से नहीं बोल पाते हैं जितना कि मैं चाहता हूँ। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास फोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, और जब भी आपको कोई टाइम मिले, दिन में, दोपहर को, शाम में, रात को, ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाएं। बाय द वे, मैं कुछ यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी वेबसाइट की, ये वेबसाइट मैंने यूज की है बहुत सालों तक, मुझे काफी फायदा हुआ है। यहाँ पर सारे ऐसे लोग आते हैं जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे काफी लोग मिले हैं हमारी नेबरिंग कंट्री से, और काफी लोग अमेरिका से भी मिले हैं, एक आध लोग मुझे यूके से या लंदन से भी मिले हैं। ठीक है,
तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको अंग्रेज मिलेंगे, वो भी कभी कभी बात करना चाहते हैं। उनका मकसद यहाँ पे है इंजॉय करना या किसी के कल्चर के बारे में जानना। जैसे अगर आप इंडियन हैं तो आपके कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग 90% वो होते हैं जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, और एक आध लोग होते हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं इस वेबसाइट पे। और सेकेंडली आप इसका नाम देख लीजिए, www.speaking24.com। यहाँ पे आप अपना नाम डालिए, अपनी एज और अपना लेवल डालिए। आप बिगिनर लेवल पे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं, ठीक है। अपना जेंडर डालिए और कंट्री, और स्काइप यूजर नेम डालिए। जब आप स्काइप यूजर नेम डालेंगे उसके बाद जो भी लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं वो सीधा आपको स्काइप पे कॉल कर सकते हैं। और जब आपका मन ना हो कि आज मैंने मान लीजिए ऑफिस में जाना है और आज मैं स्काइप पर नहीं डिस्कशन करना चाहता हूँ, उस समय ये वेबसाइट बंद कर दें। ऐसा ना हो कि ड्राइविंग के दौरान भी आपको स्काइप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि चलो इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट उस समय बंद कर दें, ऐप क्लोज कर दें। जब ये मतलब आप ब्राउजर पे ही खोल सकते हैं जब आप किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे हैं। सेकेंड वेबसाइट जो है उसको बताने से पहले यहाँ जो आप स्काइप के आइकन्स देख रहे हैं इनको क्लिक करके भी आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं तो अपना रियल नेम ना ही बताएं तो अच्छा होगा। और अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल जैसे बर्थ डेट या लोकेशन ऐसा कुछ भी ना बताएं। अगर कोई पूछे तो भी आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप किसी अनजान बंदे से, अनजान व्यक्ति से आप इंटरनेट पे बात कर रहे हैं। आपका मकसद है इंग्लिश सीखना, इंग्लिश प्रैक्टिस करना, तो अपने पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल ना बताएं, ठीक है। ऐसे ही एक मिलती जुलती सेकेंड वेबसाइट है जिसका नाम है freefortalk.com। इस पे ना केवल इंग्लिश बल्कि बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे स्काइप में आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, ये लोगों ने ग्रुप बनाए होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी लोग एक बारी में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 to 1 बात करना चाह रहे हैं किसी से, तो आप अपना खुद का ग्रुप बना सकते हैं, उसमें 2 ही स्लॉट डालिए ताकि एक आप हो और एक और जना हो जिनसे आप प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करें तो इधर उधर का ना करें, जो आपने ग्रामर का टॉपिक पढ़ा है उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि वो आपकी टेम्पररी मेमोरी से शिफ्ट होकर आपकी परमानेंट मेमोरी में जाए और आपकी नॉलेज का एक पार्ट बने, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 3 बंदों के ग्रुप में बात करना चाहते हैं तो आप 3 स्लॉट्स ले लीजिए, 9 या 10 का भी यहाँ पे इसमें स्लॉट का ऑप्शन होता है, या आप किसी और के ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन देके आप सीधा प्रैक्टिस की बात करें। अगर आप कैजुअल बातें करेंगे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन अगर आप हर बारी इंट्रोडक्शन देंगे कि हाँ जी मैं यहाँ से हूँ, मैं इस कंट्री से बिलोंग करता हूँ, मेरी नेटिव लैंग्वेज ये है, मैं ये काम करता हूँ, तो उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली नहीं है। आपको जो बात करनी है वो किसी भी टॉपिक को चूज करें कि आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, अपना नाम बता के सीधा उसको पूछें अपने इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर को कि हाँ जी इस टॉपिक पे बात करें, क्या आप कंफर्टेबल हैं, या वो कोई टॉपिक देंगे आप उस पर सीधा डिस्कशन करें, डिबेट करें, जैसे भी आप ठीक समझें। तो गाइज यही है इस वीडियो में। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें हम ग्रामर के टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे, और एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, या आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट्स आते हैं कि बोलते वक्त मान लीजिए आज आपने बात की और आपको कोई डाउट आया कि इसको कैसे कहा जाए, बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए, नीचे लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। उसमें शायद आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे पर्सनली आप मैसेज करें टेलीग्राम पर, और उसका जो रिप्लाई है वो टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा, और किसी का डाउट होगा वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, क्योंकि हम आगे भी ग्रामर के टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कभी कभी हम लाइव शोज भी करेंगे फेसबुक पर या यूट्यूब पर। अगर ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते हैं तो आप लाइव अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स अ लॉट।